السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں امیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودی کا دورہ عادل آباد، MLC انتخابی انتظامات اور دیگر امور پر عہدیداران سے تبادلہ خیال۔ عادل آباد کے محلہ خورشید نگر کا تیسرا عظیم الشان جلسہ عام بعنوان استقبال رمضان و اصلاحی معاشرے کا 22 فروری کو انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ KSR فاؤنڈیشن کے تحت عادل آباد میں مسلسل 3 سالوں سے نتیہ انادانم جاری، سینکڑوں افراد کر رہے ہیں استفادہ۔ کندی سرینواس ریڈی کو دے رہے ہیں دل سے دعائیں۔ عادل آباد میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات، فتنوں کے سبب کے لیے عزم کا اعادہ۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع عادل آباد صدر مفتی سردار رحمانی قاسمی کا بیان۔ آندھرا پردیش سمیت کئی ریاستوں میں برڈ فلو کے اثر کی وجہ سے ضلع میں چکن کی فروخت میں نمایاں کمی، دکانداروں نے کچھ دنوں کے لیے چکن فروخت کو روک دینے کا کیا فیصلہ۔ کانگریس پارٹی عادل آباد اسمبلی انچارج کندی سرینواس ریڈی نے عادل آباد ضلع مستقر میں دکانوں کا کیا افتتاح۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ عادل آباد، میدک، کریم نگر، نظام آباد MLC انتخابات کے پیش نظر ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودی نے عادل آباد کا دورہ کیا۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راجرشی شاہ نے ایڈیشنل کلکٹر شیاملا دیوی کے ہمراہ عادل آباد ضلع مستقر کے پین گنگا بھون گیسٹ ہاؤس میں پھولوں کا پودا پیش کرتے ہوئے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابی انتظامات اور دیگر امور پر عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے میدک، کریم نگر، عادل آباد، نظام آباد حلقے کے ٹیچرز اور گریجویٹس MLC انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ عادل آباد شہر مستقر کے محلہ خورشید نگر میں 22 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تیسری مرتبہ عظیم الشان جلسہ عام بعنوان استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتی سردار رحمانی قاسمی، صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ ضلع عادل آباد نے جلسہ عام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جلسے کی سرپرستی سماجی کارکن حافظ عارف خان اور صدارت حافظ سید جعفر اشاعتی کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عظیم الشان جلسہ عام میں بحیثیت مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی انعام اللہ خان اشاعتی، بانی و محتم دارالعلوم سعد بن ابی وقاص عمر کھیڑ ضلع ایوت محل مہاراشٹرا کے علاوہ نوجوان شاعر شہنشاہ ترنم رسول حافظ محمد زاہد جہان گنجوی شرکت کریں گے، جبکہ جلسے کی نظامت حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی کریں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام رہے گا۔ جمعی علماء و حفاظ و ائمہ مساجد اور نوجوان خورشید نگر، سندرائے نگر، عادل آباد نے عمد المسلمین بالخصوص نوجوانوں سے جلسہ عام میں دوست احباب کی ہمراہ شرکت و استفادہ کی اپیل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ
नौजवानान खुर्शीद नगर आदिलाबाद की जानिब से तीसरी मरतबा अजीम शान जलसे आम बतारीख 22 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुत्तसिलन बमकाम मस्जिद नूर खुर्शीद नगर आदिलाबाद बउनवान इस्तकबाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरा मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से खतीब बेमिसाल हज़रत मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब इशाअती दामत बरकातुहुम नाजिम दारुल उलूम साद इब्न अबी वक़ास उमर खेड़ से तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरह नौजवान दिलों की धड़कन मशहूर सना खान मुस्तफ़ा हाफिज जाहिद जहाना गंजवी आजमगढ़ यूपी से तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस इजलास में ज़रूर शिरकत फरमाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर तशरीफ लाएं। लिहाजा और ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल नज़म रहेगा। आइए जलसे को कामयाब बनाइए, उलमाए कराम के बयानात से मुस्तफ़ीद हो जाइए। आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी जो एक गरीब ख़ानदान से उभर कर अपनी मेहनत व लगन के ज़रिए कामयाबों की मनाजिल तय कर चुके हैं, समाजी खिदमत के मैदान में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका से वापसी के बाद इन्होंने KSR फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसके तहत मुख्तलिफ़ फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इन्हें खिदमत के तहत 3 साल क़ब्ल शुरू किया गया नित्य अन्नदानम रोज़ाना मुफ्त खाने की तकसीम का प्रोग्राम बग़ैर किसी रुकावट के मुसलसल जारी है। आदिलाबाद में वाक़ कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन के सामने रोज़ाना बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ अफराद को खाना फ़राहम किया जाता है, जिस पर आवाम की जानिब से सताइश की जा रही है। आवाम का कहना है कि इस नेक मकसद के तहत जारी खिदमत खल्क़ की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और वो कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. అన్నా అంటే मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला अदलाबाद के सदर मुफ्ती सरदार रहमानी ख़ासमी ने कहा कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िले में मुख्तलिफ़ दीनी व समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है और उम्मत को दरपेश जद्दोजहद फ़ितनों के सद्बाब के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। वो जुमा की शब बाद नमाज इशा मदीना होटल में मुनक़्क़िद एक खुसूसी इजलास से ख़िताब कर रहे थे, जिसमें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान, अरकान, उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम की एक बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास का इनेकाद मौलाना मोहम्मद मुनीरुद्दीन रशीदी की निगरानी और हज़रत मौलाना शमीम साहब ख़ासमी की सरपरस्ती में अमल में आया। मुफ्ती सरदार रहमानी ख़ासमी ने ख़िताब करते हुए कहा कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आदिलाबाद की जानिब से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर शहर की मुतअद्दिद मसाजिद में इजलास मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जहाँ नौजवानों को दीनी शऊर से आरास्ता करने और जदीद दौर के फ़ितनों से ख़बरदार करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी जुज़्व है, जिसकी हिफाजत हर मुसलमान की अवलीन ज़िम्मेदारी है। इजलास के दौरान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान व अरकान का तारुफ़ पेश किया गया और इनकी खिदमत को सराहा गया। इस मौके पर शुरका के लिए खुसूसी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम भी किया गया। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान करीम और नात रसूल से हुआ, जबकि इख्तितामी दुआ मौलाना असलम नहदी ने की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ़ उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान ने अपने ख़यालात का इजहार किया और तंज़ीम की कारकर्दगी को मज़ीद फ़ाअल बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। मुफ्ती सरदार रहमानी ख़ासमी ने इस मौके पर कहा कि फ़ितनों के सद्बाब और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मज़ीद हिम्मत, हौसले और एकजुटती के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन्होंने इस बात का इआदा किया कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आदिलाबाद अपनी खिदमत को जारी रखते हुए माशरे में दीनी बेदारी पैदा करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। इजलास में शरीक उलमा व मशाइख ने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की काविशों को सराहा और इसकी कारगर सरगर्मियों को मज़ीद वसीयत देने पर ज़ोर दिया। शुरका का कहना था कि मौजूदा दौर में दीन इस्लाम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी इत्तेहाद, एकजहती और आलमी बसीरत की साथ काम करने की ज़रूरत है। यह इजलास न सिर्फ अज़्म व हौसले के इजहार का मज़हर था, बल्कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आदिलाबाद के दीनी व समाजी हलक़ों में बेदारी की एक मज़बूत लहर पैदा करने का ज़रिया भी साबित हुआ। शेर के साथ में अर्ज़ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जन्म ले रहे थे। मैं जो भी फितने में मुब्तला हुए हैं, जो भी फितने में पड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात भी किया हूँ तो वो मानने को भी तैयार नहीं। देहात में एक फ़ितना उठा था, गोहर शाही का फ़ितना, उससे बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तायब हो गया। और आदिलाबाद खानापुर में एक बंदा जो कि अपने आप को शकील बिन हनीफ कह रहा था और उसका चेला था, उसकी दावत दे रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी हम पीछे पड़े और उससे बात हुई। वो इस तरह गायब हुआ फिर बाद में नज़र नहीं आया। अभी शकीली हो या गोहर शाही हो या इंजीनियर अली मिर्ज़ा के फितने के जद में आ चुके हो या जावेद गामिदी का फितना हो, नौजवान इसमें गुमराह हो रहे हैं, शकील बिन हनीफ के फितने के जद में आ रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन फितनों से उम्मत को आगाह करना, क्या सही है क्या गलत है, कौन सच है कौन बातिल है, उम्मत को बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो आज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए और इस सिलसिले में गौर व फिक्र करते रहना चाहिए।
आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में बर्ड फ्लू के असर की वजह से ज़िले में चिकन की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी आई है और दुकानदारों ने कुछ दिनों के लिए चिकन के फ़रोख्त को रोक देने का फ़ैसला किया। ज़िला बर्ड फ्लू से मुतासिर न होने के बावजूद लोग चिकन खाने से खौफज़दा हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता एक हफ़्ते या 10 दिनों से कोई कारोबार नहीं हो रहा है। कीमतें कम होने के बावजूद लोग चिकन ख़रीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दुकानें खुली होने के बावजूद इन्हें खाली रहना पड़ रहा है। नतीजतन दुकानदारों ने बर्ड फ्लू का असर कम होने तक फ़रोख्त रोक देने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए जुमा से दुकानें रज़ाकाराना तौर पर बंद कर दी गई। ताजिरों का कहना था कि जब तक आवाम में खौफ व हरास ख़त्म नहीं होता वो फ़रोख्त नहीं करेंगे। इन्होंने शिकायत की कि ज़िले में बर्ड फ्लू का असर ना होने के बावजूद कारोबार नहीं हो रहा है। इनका कहना था कि अगर कोई वायरस है तो ये सबसे पहले इन्हें मुतासिर करेगा और ये अब तक किसी को ये मर्ज़ लाहक नहीं हुआ है। इन्होंने अपनी तशवीश का इज़हार किया कि डिमांड ना होने की वजह से इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने वाज़ेह किया कि खौफ व हरास की सूरत हाल के हल होने तक चिकन की फ़रोख्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के भुगतापुर कॉलोनी में वाक़ सैयद ज़ियाउद्दीन जैनर्स ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड कार डायग्नोस्टिक वर्कशॉप की इफ्तिदाई तकरीब में शिरकत की और मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। इन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि कारोबार अच्छी तरह तरक्की करे और बेहतर सतह पर पहुँचे। इसी तरह इन्होंने सैयद मुसैब और मोहम्मद इब्राहिम के ज़रिए शहर के बुक्कलगुड़ा कॉलोनी में मदीना फ्रूट जूस सेंटर की इब्तदाई तकरीब में शिरकत की। इन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। क़ब्ल अज़ां दुकान के मुंतज़मीन ने KSR का खैर मक़दम किया और इन्होंने रिबन कट करते हुए इब्तदाई तकरीब का आगाज़ किया। इसके बाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी को शाल पोशी और गुलदस्ते पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। అక్కడ ఊర్లేదు నేను బయట పోయినాక చేస్తాను.
एक मुतासिरा ने तहसीलदार रघुनाथ से शिकायत की कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बेला मंडल के कंगरपुर घाट पर गैर क़ानूनी रेत माफिया रात के वक्त रेत की नकल हमल कर रहे हैं, जिससे इनके घरों में धूल और सूती आलूदगी का मसला पैदा हो रहा है। इस मौके पर मीनारपुर के मुतासिरा आतरम हीरामन ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रात के वक्त रेत की गैर क़ानूनी नकल हमल का एक बड़ा मसला है। इन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि भारी गाड़ियों के शोर की वजह से बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। इनका कहना था कि धूल घरों में दाखिल होने से लोग बीमार हो रहे हैं। आला हुकाम से रेत की गैर क़ानूनी नकल हमल पर रोक लगाने पर जोर दिया गया, अगर नहीं तो वो ज़िला कलेक्टर से शिकायत करेंगे। वही अभी जाके आए उधर, हम भी उधर जाके आए अभी स्पॉट को पूरा सीज कर ले गंगापुर तुम्हारा हमारे गांव में कि नहीं रेते माफिया कि नहीं हमको तकलीफ दे रहे, हमको नहीं कि खाना नहीं जा रहा धुब्बे से, और कि नहीं क्या है बोले तो कि नहीं नींद भी नहीं आ रही, नाइट में सोना नहीं हो रहा। वो ब्रेकर है, ब्रेकर पे कि नहीं लारे वाले बड़े ट्रैक्टर वाले और कि नहीं टिपरा वाले कि नहीं कि पूरे ब्रेकर कर रहे, नहीं नींद नहीं आ रही। कूलर की नहीं भर भर बोल के कूलर हमारे चल रहे, लेकिन टीना के नहीं वाइब्रेशन से कि नहीं बहुत बड़ी तकलीफ हो रही कि नहीं हम कि नहीं वो जैसे कि नहीं नींद की नहीं हमारी कि नहीं नींद नहीं आ रही हमको, ऐसी प्रॉब्लम है। देख रहे थे माफिया को कि नहीं बंद करो, क्यों बोले थे कि नहीं कब आज की नहीं हम क्या करें कि नहीं हमारा ऑफिस को आके मैं कंप्लीट दिया, अगर कि नहीं ये भी कंप्लीट कि नहीं अच्छा नहीं हुआ तो नहीं सार बोले तो कि नहीं कंप्लीट ये नहीं करे तो हम इसके ऊपर भी जाके कि नहीं कंप्लीट करते हैं। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी ने प्यार से मदऊ किए गए लोगों की शादी की तकरीब में शिरकत की। इन्होंने शहर के कई फंक्शन हाउस में मुनक़िद होने वाली शादी की तक़रीबात में शिरकत की। इन्होंने नौबहाता जोड़ों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने इनकी लंबी खुश खुर्रम ज़िंदगी और 100 साल की खुशगवार ज़िंदगी की ख्वाहिश ज़ाहिर की और नौबहाता जोड़ों को शादी के तोहफ़े पेश किए। आदिलाबाद ज़रई मार्केट यार्ड में कपास की गाड़ियों की आमद ने हलचल मचा दी, क्योंकि तकनीकी वजूहात की बिना पर कई दिनों से रुकी हुई कपास की ख़रीदारी दोबारा शुरू हो गई है। तकनीकी वजूहात की बिना पर तकरीबन 10 दिनों से ख़रीदारी आर्जी तौर पर मुअत्तल होने से काश्तकारों को कपास की फ़रोख्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इन्हें मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वह घरों पर कपास का ज़ख़ीरा नहीं कर पा रहे थे। ताहम आधार सर्वर की बहाली के साथ ही कपास की ख़रीदारी मामूल के मुताबिक शुरू हो गई। जुमा के रोज़ ख़रीदारी का दोबारा आगाज़ हुआ। इससे मार्केट यार्ड में हलचल मच गई, क्योंकि कई इलाक़ों से कपास किसान की गाड़ियां लेकर आने से
थे। हुकाम ने किसानों से अपील की कि वो अपनी फसलें फ़रोख्त के लिए ले आए। ख़रीदारी मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। जैनत मंडल के लेखरवाड़ा गांव के कांग्रेस के सीनियर कायद तिल्ला राकेश का जुमा की सुबह इंतकाल हो गया। इसकी इत्तला मिलते ही आदिलाबाद असम्बली हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी इनके शहर गए और इनके अहल खाना से मुलाकात की। राकेश की मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए इन्होंने गहरी हमदर्दी का इजहार किया। धर्मा समाज पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मंडा ज्योति ने मेदक, करीमनगर, आदिलाबाद और निज़ामाबाद के ग्रेजुएट से कहा कि वो इन्हें अपनी पहली तरजीह वोट दें और एमएलसी के तौर पर सबसे ज़्यादा अक्सरियत से जीतने में इनकी मदद करें। इस मकसद के लिए इन्होंने जुमा के रोज़ अपने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद ज़िला हेड क्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इन्होंने कहा कि वो 27 तारीख को होने वाले मुत्तहिदा आदिलाबाद, मेदक, करीमनगर और निज़ामाबाद हलक़े से डीएसपी से एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया कि जीतने के बाद वो ग्रेजुएट्स के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और काउंसिल में भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। धर्म समाज पार्टी गौरव శ్రీ డాక్టర్ విశారదన్ మహారాజ్ గారి నాయకత్వం గెలిపించుకుందాం ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి శ్రీ మందా జ్యోతి గారిని ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అభ్యర్థి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి మందా జ్యోతి గారిని గెలిపించుకుందాం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి, కరీంనగర్, మెదక్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి మందా జ్యోతి గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ధర్మ సమాజ్ పార్టీ యొక్క ఆలోచన ఈరోజు సామాన్య జీవితం గడుపుతూ ఇలా ప్రజాసేవకు అంకితమైనటువంటి ఒక దళిత బిడ్డ ఈరోజు ఓ మాల సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి బిడ్డగా ఇలా అనేక ధర్మ సమాజ్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అగ్రకుల పేదల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థిగా, రాష్ట్ర నాయకురాలిగా పనిచేస్తూ
ఈరోజు తన యొక్క వైద్య వృత్తిలో కూడా ప్రజాసేవను చేస్తూ ఎన్నో వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించి ఎంతోమంది పేదలకు సేవలు చేస్తూ ఆ సేవ ద్వారా మరింత ఈ సమాజానికి మేలు చేయాలన్న ఒక సదృక్పథంతో ఈరోజు ఈ ఎన్నికల బరిలో నిలవడం జరుగుతుంది. ఈ నెల 27న జరగబోయే ఉమ్మడి మెదక్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మందజ్యోతి అనే నేను బరిలో ఉన్నాను. నేను గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ధర్మ సమాజ్ పార్టీలో రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యురాలుగా పనిచేస్తున్నాను. నా యొక్క సేవలను విద్యారంగంలో కావచ్చు, ప్రజలలో పడుతున్నటువంటి ప్రతి కష్టంలో పడుతున్న ప్రతి విషయాన్ని నా సొంత విషయంగా తీసుకొని పరిష్కరిస్తున్నా. కాబట్టి నా యొక్క పనితనాన్ని సార్ గుర్తించి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా రాష్ట్ర అధినేత డాక్టర్ విశారదన్ సార్ గారికి కూడా ప్రత్యేక జై భీమ్లు. ప్రజలలో పట్టభద్రులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మరియు వికలాంగులైనటువంటి అందులో కూడా పట్టభద్రులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ సేవలలో కూడా పాలు పంచుకొని వాళ్లకు కావలసినటువంటి అవసరాలు వాళ్ళ పరంగా కూడా కొట్లాడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. కాబట్టి నాతో పోటీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ అభ్యర్థులందరూ నన్ను ఒక ఆడపడుచుగా గుర్తించి వారి యొక్క మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు కూడా నాకు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस और प्रजा सेवा भवन लोगों, पार्टी कायदीन, लीडरों और शायकीन की आमद से कचाकच भर गया। हल्के भर की आवाम और ज़ात पात की तंजीमों के कायदीन ने आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से बाइज़्ज़त तौर पर मुलाकात की। बहुत से मामलात पर इनसे मशवरा किया। इन्होंने मुस्बित जवाब दिया और यकीन दिलाया कि वो इन्हें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। KSR ने मुख्तलिफ़ मसाइल को तामुल से सुना और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो इनके साथ खड़े रहेंगे। అది లేకుండా ఏం లేదు. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के एक प्राइवेट स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल के ग्रेड 1 से 5 तक के मुतअद्दिद तलबा की तिब्बी मायने किए गए। मुंतज़िमीन ने बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सेहत के बहुत से मसाइल पैदा होने के इम्कानात के पेश नज़र इस हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया और मुफ्त तिब्बी मायना किया गया। ఓంకార్ హాస్పిటల్ తరపు నుంచి క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. జనరల్గా ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ అంటే 5 సంవత్సరాల నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకి జనరల్గా వెదర్ చేంజెస్ వల్ల సీజనల్ డిసీజెస్ తొందరగా ఉంటాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే లో ఇమ్యూనిటీ. పిల్లల్లో ఆహారం అలవాట్ల వల్ల ఇలాంటి ఇమ్యూనిటీ లోపం వల్ల ఇది తొందరగా కాఫ్, కోల్డ్, ఈ వెదర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఇలాంటి తొందరగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో
సో అందుకోసం మేము ఇలాంటి క్యాంప్ కండక్ట్ చేసి పిల్లలు మరియు పేరెంట్స్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. आदिलाबाद शहर मुस्तखर के कैलाश नगर में वाक़ दीक्षण मुख हनुमान मंदिर की 38वीं सालगिरह शान और शौकत के साथ मनाई गई. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और खुसूसी पूजा की, ज़ियारत के नजराने वसूल किए. इनके साथ कॉलोनी के मकीनों, अक़ीदतमंदों और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कमेटी के अरकान ने शिरकत की. हनुमान जयंती गणपति शिवालय और जिलेबी कर చాలా మంది మళ్ళీ యాక్టివ్గా చేద్దాం, పని आदिवासी हकूला पोराटा समिति ख़वातीन विंग की सदर गोडम रेणुका ने कहा कि आदिवासी हकूला पोराटा समिति के ज़ेर एहतमाम अगले माह 8 मार्च को वर्किंग वुमेंस डे मनाया जाएगा. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ पम्पलेट्स की नक़ाब कुशाई की गई और तफसीलात का इंकशाफ किया गया. इनका कहना था कि वो अगले माह की 8 तारीख़ को मुकामी कुमरम भीम कॉलोनी में वर्किंग वुमेन डे मना रहे हैं. इन्होंने क़बायली ख़वातीन पर ज़ोर दिया कि वो कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं. మార్చి 8 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఆదివాసీ మహిళా సంఘం, తుడుందెబ్బ, అనుబంధ సంఘాలు, రాయ్ సెంటర్స్ అందరూ కలిసి కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా మావల మండల్ కుమ్రంభీం కాలనీలో ఆదివాసీ ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ మహాసభను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి శ్రామిక వర్గ ప్రజలు, కార్మికులు, కర్షకులు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ మహిళా సభను విజయవంతం చేయాలని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవము ఇదొక మహిళలకు పండుగ. అంతర్జాతీయంగా దీనికి ఒక ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించడం అనేది జరిగింది. దీన్ని మనం అందరం కూడా మహిళలందరం కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంగా జరుపుకొని దీన్ని విజయవంతం చేయాలని శ్రామిక వర్గం మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున కదిలి వచ్చి విజయవంతం చేయాలనేది విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. संत रविदास सेवा मंडली के नुमाइंदों ने बताया कि कौमी गुरु रविदास फेस्टिवल का प्रोग्राम इस महीने की 23 तारीख बरोज़ इतवार को शानदार तरीके से मुनक़िद किया जाएगा. इन्होंने जुम्मा के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की तफसीलात का इंकशाफ किया. इन्होंने लोगों से अपील की कि वो चिलकुरी लक्ष्मी नगर के काला गुरु रविदास मंदिर में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ.
गुरु रविदास जी इनके 648वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदिलाबाद में चिलकुर लक्ष्मी रविदास मंदिर के अंदर में दिनांक 23 फरवरी रोज़ रविवार सुबह 10 बजे राष्ट्रीय गुरु रविदास फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अतः सभी समता प्रेमी मानवता प्रेमी भाई और बहनों को मैं निवेदन करता हूँ कि जो अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल कराएं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसके अंदर हमने ये केवल पूजा पाठ कर्म का प्रोग्राम ही नहीं बल्कि इसमें बहुआयामी कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया गया है। साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं पूरे देश के अंदर में, इसमें अकोला, अमरावती, महाराष्ट्र, चंद्रपुर, नागपुर, पुणे, मध्य प्रदेश से कई पूरे देश से समाजसेवी साहित्यिक लोग इसमें आ रहे हैं। उनको हम इस राष्ट्रीय गुरु रविदास फेस्टिवल के अंदर में हमने 40 लोगों को राष्ट्रीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार से हम उनको नवाज रहे हैं, उनका अवार्ड दे रहे हैं। उसके बाद में उसमें कवि प्रशांत बंजारे इनकी अध्यक्षता में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसमें कई कलाकार आ रहे हैं, जिसमें मिर्जाओ बोलते ये भत्थे नाट्य हैं। ऐसे विविध कार्यक्रम का हमने नियोजन किया है। अतः सभी बहुजन भाइयों से निवेदन है कि आप अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल कराएं। इसमें हमने विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि जोगु रामन्ना जी, आदरणीय पायल शंकर जी और कंजी श्रीनिवास रेड्डी को हमने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया है। आवाम और मोबाइल फ़ोन सारिफिन को अपने मोबाइल फ़ोन गुम होने या चोरी होने पर किसी तशवीश में मुब्तला हुए बग़ैर नाउमीद होकर महकमा पुलिस की जानिब से तरतीब दिए गए खुसूसी वेबसाइट सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR में लॉग इन के ज़रिए अपनी तफसीलात दर्ज कराने पर पुलिस मुलाजिमीन सिग्नल के एहसास पर मसरूखा या गुमशुदा फ़ोन बाजियाब करते हुए अपने हकीकी मालिकों के हवाले करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर P. अनुराधा ने गुज़िश्ता अरसे में सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में गुमशुदा या मसरूखा मोबाइल फ़ोन्स अपने मालिकान के हवाले करते हुए तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि आज 105 मोबाइल फ़ोन CEIR के मदद से मुख्तलिफ़ मुक़दमात से बाजियाब किए गए थे। इन्होंने नागानी सूरत हाल के दौरान या इत्तेफाक़ी तौर पर खो जाने वाले मोबाइल फ़ोन पर किसी तशवीश में मुब्तला हुए बग़ैर रास्त मुकामी पुलिस स्टेशन या वेबसाइट में इंदराज करने का मशवरा दिया। इस मौके पर 105 मोबाइल फ़ोन बरामद करने वाले पुलिस मुलाजिमीन कांस्टेबल स्वामी, महेश, अनिल, रवि को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में मोबाइल सारिफिन ने बात करते हुए कीमती फ़ोनों को बाजियाबी और हवाले करने पर महकमा पुलिस बिलखुसूस कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर B. अनुराधा से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल इंस्पेक्टर श्रीधर गौड़, स्वामी, राजीव रेड्डी, हरीश, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मल्लिकार्जुन रेड्डी, पुलिस संगम के रियासती नायब सदर रविंदर रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। ఎందుకంటే మేము ఫోన్ పోయినప్పుడైతే ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు అసలు ఫోన్ పోతే దొరుకుతుందా అనే ఫీలింగ్లో ఉంటుండే. కానీ హ్యాట్సప్ టు ఎవ్రీ వన్ ఎవరైతే ఈ వర్క్కి సపోర్ట్ చేసి ఎవరైతే చేశారో నిజంగా వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి. రియల్లీ గ్రేట్. అంటే చూడండి మన స్టేట్లో ఇంత అప్డేట్ అయిందంటే నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఇక్కడ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి. ఇంకా నేను మాటలలో అయితే చెప్పలేమో అసలు ఫోన్ పోతుంది దొరుకుతుంది అనే ఫీలింగ్. పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ అంటే కొంచెం ఇంట్లో నాకు చిన్నప్పుడు భయం ఉంటుండేది. ఆ పోలీసులు చూస్తేనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అని. కానీ ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఒక ఫ్రెండ్లీ మూవ్మెంట్ అనేది వచ్చింది. రియల్లీ వెరీ థ్యాంక్ యూ గవర్నమెంట్కి. నిజంగా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ వర్క్కి సపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदी का दौरा आदिलाबाद, MLC इंतखाबी इंतज़ामात और दीगर उमूर पर ओहदेदारान से तबादला ख्याल। आदिलाबाद के महला खुर्शीद नगर का तीसरा अज़ीमुश्शान जलसे आम बाउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाही माशरे का 22 फरवरी को इनेकाद अमल में लाया जाएगा।
KSR फाउंडेशन के तहत आदिलाबाद में मुसलसल 3 सालों से नित्य अन्नदानम जारी, सैकड़ों अफराद कर रहे हैं इस्तेफादा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दे रहे हैं दिल से दुआएं। आदिलाबाद में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खिदमत, फितनों के सदबाब के लिए अज़्म का इयादा। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला आदिलाबाद सदर मुफ्ती सरदार रहमानी क़ासिमी का बयान। आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में बर्ड फ्लू के असर की वजह से ज़िले में चिकन की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी, दुकानदारों ने कुछ दिनों के लिए चिकन फ़रोख्त को रोक देने का किया फैसला। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में दुकानों का किया इफ्तिताह। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।